Hi guys, welcome back to another episode of the short series we have already started, FMG 10 on 10. The topics that are already done are GCS, Glasgow Coma Scale, nephrotic versus nephritic, collagen defects, and day before yesterday we only did hepatitis, seromarkers. So today we have another important topic, which is renal tubular acidosis. Many questions come from this as well. It is a very high yield topic, quite a difficult thing to understand because it somehow gets left out. Even I studied it very, very later in my life. Like, I don't know how I missed it, but I missed it. I'm just gonna admit it, I missed it. I've already written the most important things and the most expected questions that can come from this topic just all in one page. You just need this one page, and after I explain the things, how you have to memorize or remember or understand these things, it's going to get very easy for you. So without wasting any of more time, let's get started. Let's go into the topic. So pehli cheez what I want you to know is the basic anatomy, basic structure of the nephron we all know. तो इसमें पहला first thing you need to know is the proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, collecting tubules. These three things is the most important, which will help you remember what happens in RTA. So you have to remember the types of RTA. There are 4 types of RTA. Okay, 1, 2, 3 and 4. 1 and 2 are given, 1 to 4 are given here. 3 I have not included in this table because 3 is a mixed type, and only one question regarding this will come, that it is because of a carbonic anhydrase 2 deficiency, which I have written here down. So one form of potential question will be which type of RTA involves which part of anatomical structure of your nephron. So this will be sorted with your this small diagram, which will include कि अगर type 2 है तो it will involve PCT, proximal convoluted tubule. Type 1 है तो it will involve DCT, and अगर type 4 है तो it will involve your collecting tubules. You make this diagram, you just remember it once and it will stay forever, I'm telling you. तो ये एक तरह का क्वेश्चन तो आपका हो गया. दिस इज सॉर्टेड. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट दे कैन आस्क यू इज विच टाइप ऑफ RTA इज एसोसिएटेड विथ व्हाट काइंड ऑफ डिसीजेस. तो फॉर दैट यू विल रिमेंबर हियर Fanconi इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. टाइप 2 में Fanconi आप लिख लेना. Fanconi इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. टाइप 1 में आपका सारे इम्यूनोलॉजिकल, आपका रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें जोग्रेंस हो जाएगा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा. तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. टाइप 4 में आपका भी एस ही हैं दोनों चीज़ें, सिकल सेल एनीमिया और SLE. तो ये हो गया नंबर 2 टाइप का क्वेश्चन आपके लिए. अब आ जाते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन पे, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 कैसा आपको पूछा जा सकता है. दैट विल बी सॉर्टेड इन दिस गिवन टेबल. तो ये टेबल में आपको पहले लिखना है 2 1 4. इसी सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में हमारा ऊपर भी चल रहा है 2 1 4. सो ये ही सीक्वेंस में लिखेंगे तो याद रहेगा. फिर ऊपर में कॉलम्स में क्या लिखेंगे आप, एक तो पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा. अब एसिडोसिस एल्किलोसिस जैसी बातें हो रही हैं तो pH तो मैटर करेगा ही, pH होगा. किडनी है तो नेफ्रोलिथियासिस, किडनी स्टोन भी आप इसमें फैक्टर इन कर लेंगे इस टेबल में. चलिए, पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि टाइप 4 वाला सबसे पहले पढ़ लेते हैं, नीचे से पढ़ते हैं आपका. तो टाइप 4 साउंड करता है मोर जैसा, है ना. तो 4 और मोर, तो मोर क्या होगा आपका, पोटेशियम जो है मोर होगा, तो हाइपरकेलीमिया होगा टाइप 4 RTA में. ये आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं याद रखनी, बाकी ये सब सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है. अब क्योंकि हम लोगों ने नीचे से शुरुआत की थी तो टाइप 1 पे भी चले जाते हैं. टाइप 1 में अब आपका टाइप 4 मोर सिर्फ जो पोटेशियम लेवल मोर सिर्फ टाइप 4 में होगा, तो टाइप 1 और टाइप 2 में ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा. अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है, कैल्शियम. कैल्शियम जो है आपका टाइप 1 में हाई होता है. ओके, ये चीज़ आपको बस ध्यान रख लेनी है और बाकी चीज़ें हो जाएगी. अब कैल्शियम हाई होगा तो स्टोन फॉर्मिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब स्टोन फॉर्म होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. तो कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स भी सिर्फ टाइप 1 RTA में मिलते हैं. टाइप 1 RTA में ही कैल्शियम भी हाई होगा, स्टोन्स भी ज़्यादा मिलेंगे. और एक चीज़, सब कुछ इसमें ना ज़्यादा हो रहा है. नाम भले ही टाइप 4 में मोर हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें सब ज़्यादा किस में हो रही हैं, टाइप 1 में हो रही हैं. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक ट्रिक याद रख सकते हो कि 4 मोर तो है, मतलब नाम से तो मोर लग रहा है, लेकिन ये ना फेक मोर है. इसमें सिर्फ पोटेशियम मोर होके इसको लगता है सब इसका ज़्यादा होगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है. बाकी चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं. कैल्शियम भी नॉर्मल है, pH भी 5.5 से कम है,
ये स्टोन्स भी नहीं बना रहा है। लेकिन जो नंबर 1 पे बैठा है ना वो असली मोर है, लेकिन वो पोटेशियम उसका लो है, वो दिखा नहीं रहा कि वो मोर है, लेकिन बाकी चीज़ें उसकी सारी मोर जा रही हैं। यानी कैल्शियम भी हाई जा रहा है, पीएच भी उसका 5.5 से ज़्यादा जा रहा है, नेफ्रोलिथियासिस भी उसमें ही किडनी स्टोन्स भी बन रहे हैं। तो दिस इज़ अ वे हाउ यू कैन रिमेंबर इट। आई नो इट कुड बी डिफिकल्ट, मगर थोड़ा ट्रिक बना के बिठाओगे तो हो जाएगा। अब आपने 4 और 1 पढ़ लिया ना, तो 2 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 में आपको बस ये ध्यान रखना है लोकेशन कहाँ हो रही है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एसोसिएटेड क्या क्या है, फैंकनीज मत ढूंढना, डेंस और लव याद रह जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन फैंकनीज मोस्ट प्रोबेबली एफएमजी लेवल पे फैंकनीज ही पूछेगा। अब पोटेशियम इसमें भी लो ही हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम तो सिर्फ एक जगह हाई हो सकता था, जो हमारे मोर भाई साहब हैं उनके में। फिर आपका कैल्शियम भी इसमें नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम सिर्फ एक ही असली हाई वाला बंदा है, वो है टाइप 1। फिर पीएच इसमें भी कम जा रहा है, क्योंकि देखो 2 थोड़ा 4 जैसा ही है, बस 2 और 4 में एक ही डिफरेंस है कि 2 अपना नॉर्मल सा बंदा है, उसको पता है मैं कम हूँ, मैं कम ही रहूँगा। लेकिन 4 जो है ना, थोड़ा उसके नाम में 4 आ गया है, मोर जैसा उसको फीलिंग आ रही है, तो बाकी सब तो कम ही है उसका, लेकिन उसने पोटेशियम अपना मोर कर दिया है। ठीक, तो चलो ये आपकी टेबल सॉर्ट आउट हो गई। 2 1 4, 4 में मोर क्या होगा, मोर में पोटेशियम मोर होगा, बाकी ये बस नाम का मोर है, तो बाकी सब नॉर्मल ही चलेगा। नॉर्मल कैल्शियम, नॉर्मल पीएच 5.5 से कम, कोई वो स्टोन नहीं बनना। फिर 1 में आपका 1 जो है नंबर 1 पे टॉप पे बैठा है, लेकिन उसको दिखाना नहीं है कि वो मोर है, तो पोटेशियम तो उसने लो ही रखा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हाई है उसकी। तो कैल्शियम हाई हो गया, पीएच 5.5 से ज़्यादा हो गया, और कैल्शियम हाई है तो स्टोन बनेगा ही, बनना ही है। ठीक है, 2 क्या है इसमें आपका, तो स्टोन बनेगा ही, बनना ही है। ठीक है, 2 क्या है इसमें आपका, 2 क्या है, 2 नॉर्मल सा बंदा है, उसको पता है वो लो है, उसको ना दिखावा करना है ना कुछ करना है, तो कैल्शियम भी नॉर्मल जा रहा है, पीएच भी 5.5 से उसको लेस ही जाना था, लेस जा रहा है। नेफ्रॉन में आपका नेफ्रोलिथियासिस का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कैल्शियम नॉर्मल है। ठीक, ऐसे तो आपको टेबल याद रखनी है। ये टेबल याद रहेगी तो बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। पहला तो टाइप 3 पे आ सकता है, जो मैंने शुरू में ही बोला कि टाइप 3 किस टाइप का है, ये मिक्स टाइप का आरटीए है। ठीक है, और इसका जो रीज़न आ रहा है इसमें CA2 डेफिशिएंसी की वजह से, बस इतना याद रख लेना। फिर आरटीए में क्या होता है कि ये नॉर्मल एनायन गैप टाइप कैटेगरी में आता है। बहुत सारे गैप है ना, हाई एनायन गैप में होता है या नॉर्मल एनायन गैप में होता है, तो ये नॉर्मल एनायन गैप वाले हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कैटेगरी में आता है। ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, बस नॉर्मल एनायन गैप याद रख लेना, बाकी तो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना। देखो क्वेश्चन 5 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। अब 6 टाइप का क्वेश्चन आपको टाइप 4 से पूछ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली अवेलेबल मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटिंग आरटीए है, तो ये एक्वायर्ड टाइप का आरटीए एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इन्वॉल्व क्या करता है वो हमने डायग्राम में ऑलरेडी देख लिया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व करता है। मोस्ट कॉमनली कहाँ देखा जाता है, डीएम नेफ्रोपैथी में देखा जाता है। डीएम नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज मेलिटस की नेफ्रोपैथी में। डायबिटीज मेलिटस नेफ्रोपैथी का एक और कोरिलेशन ले लो कि फर्स्ट क्लिनिकल साइन जो है डीएम नेफ्रोपैथी में क्या दिखता है, वो होता है एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्ब्यूमिन जो है आपके यूरिन में प्रेजेंट होने लगता है, वो फर्स्ट क्लिनिकल साइन है। ओके, वापस आ जाओ अभी टाइप 4 पे। तो टाइप 4 में और क्या है, और क्या सवाल पूछ सकता है कि हाइपोरेनिन हाइपोएल्डोस्टेरॉन होता है इसमें। जो टाइप 4 आरटीए हो रहा है उसमें मैकेनिज्म क्या है उसका आरटीए का, उसमें हाइपोरेनिन और हाइपोएल्डोस्ट। तो ये तो था गाइज आरटीए शॉर्ट टेस्ट फॉर्म में, जो मुझे लगा कि एफएमजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आस्क की जा सकती हैं। तो उन पे मैंने एक तो क्वेश्चन भी लिख रखा है, ये क्वेश्चन 1 जैसे करके, क्वेश्चन 2 जो है आपका डिसीजेस पे, क्वेश्चन 3 स्टेबल से हो सकता है, क्वेश्चन 4 टाइप 3, क्वेश्चन 4 ये नॉर्मल एनायन गैप वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन 6 टाइप 4 पे पूछ सकते हैं, मोस्ट कॉमन है तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से पूछ सकते हैं। एल्ब्यूमिन्यूरिया फर्स्ट क्लिनिकल साइन, ये तो एड ऑन ले लो आप। ठीक है, ये आपको इस तरह से याद करने में हेल्प होगी। फिर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको और भी कुछ लगता है कोई टफ टॉपिक है और किसी में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, तो प्लीज़ गो ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, और वहाँ पे वी टेक अ पोल कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, और वहाँ पे यू कैन टेल मी व्हाट यू वांट। सो या दिस वाज इट। आरटीए कर लिया हम लोगों ने, आई होप 10 मिनट के अंडर में ही हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट अगेन। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको टफ लग रहा है, प्लीज़
text me on Instagram handle Shenior19. The link is there in my YouTube channel. और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर्स के साथ और फेलो FMGs के साथ शेयर करें. थैंक यू.